What can you see on the smart board? Triangle. Which kind of triangle are they? Very good. They are right angle triangle. Okay. So if this angle and this angle is the right angle, and if we will take this angle and this angle as theta, can you tell me what will be both of these angles? We know that three angles of a triangle 180 degree. If one angle is 90 degree and the other is x or theta or whatever may be, then how can I mention the rest of the remaining angle? 90 degree minus theta. So here we have triangle ABC and here we have triangle DEF. So in the previous chapters or in the previous classes also, we have studied that similarity. Can anyone tell me what is similarity? Can anyone tell me what is similarity? Okay. Here you can see two triangles. In the two triangles, these two angles are angle D and angle A are similar. Same. Angle F and angle C are same. Angle E and angle B are same. So can we tell that it is similar? Okay. So if I will ask you, by side of the theta angle, that is BC, will be opposite. And can anyone tell me what can we call the side AB? Corner, or in English, hypotenuse. So similarly, in the triangle DF will be adjacent, EF will be opposite, and the DE will be hypotenuse. So from triangle similarity and to the trigonometric ratio, by using the similarity in these two triangles, we will move to the trigonometric ratios. So earlier we know that two similar triangles that may be same in shape but not same in the size. Like here triangle ABC and DF. You can see that triangle DF is a little bit larger or bigger than the triangle ABC. That's why we call it similar. And angle A and angle B are complement. Can anyone tell me what is a complement angle? Very good. When two angles are, the sum of two angles are 90 degree, then they are called complementary angle. Can anyone tell me in DEF triangle which two angles are complementary? Angle D and angle E. Can anyone tell me in ABC triangle which two angles are complementary? Angle A and angle B. So the ratio of, we know from earlier that the ratio of corresponding sides of similar triangles are always same. So can we say that the ratio of BC by BA will be equal to EF by ED? Yes, sir. Okay. So can we similarly say that the ratio of AC by AB will be equal to DF by DE? Yes, sir. Similarly, can we say that BC by CA will be equal to EF by FD? Yes, sir. Okay. So now we will learn how the trigonometric ratios are derived from this formula. But before going there, instead of this name of the side, can we say BC by BA? BC is what? BC is the opposite. BC is opposite and BA is hypotenuse. So can we say that opposite by hypotenuse are same here? The opposite of ABC and hypotenuse are similar to the opposite and hypotenuse of DEF. So similarly, if we will move to, as per the definitions of the trigonometric ratios, if we take a right angle triangle that is ABC and there is an angle theta, and as per the angle theta we will write that sin theta will be equal to opposite by
hypotenuse. And similarly, cosine theta will be equal to adjacent by hypotenuse. And similarly, tan theta will be equal to opposite by adjacent. So if we take a right angle triangle here and the base is 7 and the height is 4, can anyone tell me what will be the hypotenuse here using the Pythagoras theorem that we have learned earlier? Please raise your hand, whoever has got the answer. Okay, Kamlesh, please. Under root 65. Very good. Please sit down. So here the height will be, the hypotenuse will be root over of 65. So can you tell me from here that what will be the cos theta in the triangle? Can you calculate the cos theta? What we have learned in the previous slide, that cos is adjacent by hypotenuse. So here you have to tell me what is the adjacent. इसको ये जो थीटा एंगल है इसके साथ कौन सा वाला साइड एडजेसेंट है? 4 एडजेसेंट है। और cos है तो हमें क्या निकालना है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा वाला है? h जो क्या आया है? रूट ओवर 65। सो क्या आएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 4 बाय रूट ओवर 65। तो 4 बाय रूट ओवर 65 ये एक रेशनल नंबर है रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर हमें इसे रेशनलाइज करना है तो हम रूट ओवर 65 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद हमें मिल सकता है 4 रूट ओवर 65 सॉरी बाय होगा। फिर वैसे sin थीटा कैसे निकालेंगे? कोई बोल सकता है sin थीटा का फार्मूला क्या है? जैसे cos का हमने देखा, वेरी गुड। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे है थीटा, तो क्या होगा? ऑपोजिट होगा। थीटा के ऑपोजिट में कौन है? 7 है। और फिर उसके बाद क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, तो 7 बाय h, तो 7 बाय रूट ओवर 65। सिमिलरली हम tan थीटा पे जाएंगे। tan में क्या होता है? tan का फार्मूला कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हाँ बताइए। वेरी गुड। sin थीटा बाय cos थीटा भी कर सकते हैं, या फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने देखा कैसे करते हैं tan का ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट थीटा के ऑपोजिट में कौन है? 7 है। और उसके एडजेसेंट में कौन है? तो हमारे पास 7/4 होगा। या फिर हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा शताब्दी मैम ने कि इसको हम tan को sin थीटा बाय cos थीटा कर सकते हैं। तो sin थीटा हमारे पास क्या है? 7 रूट ओवर 65 बाय 65 इनटू cos थीटा क्या है? 65 बाय 4 रूट ओवर 65। तो सारा का सारा कैंसिल हो गया, हमें 7/4 मिलेगा कि नहीं? तो आपने सबने बुक अगर थोड़ा पढ़ के घर में आए होंगे तो देखा होगा कि बुक में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, लेकिन हम देखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आया कैसे, या फिर ऐसे सिर्फ इसको रट्टा मार देंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें कि एक साइड है हमारा 2 और दूसरा एक साइड है 4। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो एडजेसेंट है ये कितना आएगा और बेस है कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके? वेरी गुड। स्क्वायर रूट 12 उसको ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे तो क्या 2√3 आएगा? वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे कि इसमें sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है? sin का फॉर्मूला फिर से बताइए मुझे। ऑपोजिट बाय
हाइपोटेनस। वेरी गुड। सो किरण सर आप खड़े हो जाइए, आप बताइए ऑपोजिट में क्या है? sin 30 का ऑपोजिट में 30 का ऑपोजिट में 2 है, और फिर हाइपोटेनस में क्या है? तो 2/4 कितना होगा? 1/2। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। आगे क्लास में ये हम उसके बाद जाएंगे cos 30 डिग्री में। कौन बोलेगा मुझे cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ किरण सर बताइए। cos 30, cos का क्या होता है? एडजेसेंट होता है, और हाइपोटेनस वेरी गुड, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो क्या मिलेगा हमें? बाय 4। वेरी गुड। तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा √3/2। सिमिलरली tan, वेरी गुड, बैठ जाइए। सिमिलरली हम tan का देखेंगे तो tan का हमें मिलेगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है इसका? ऑपोजिट है 2, एडजेसेंट है 2/√3, तो 2/2/√3 आएगा। सिंपलीफाई करने में इतना। इसी तरह हम sin 60 डिग्री, इसी तरह हम sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, लेकिन एक और बात, आप सभी ने ये देखा हर एक स्लाइड में ऐसा कुछ था, किसी ने नोटिस किया नीचे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं क्यों ये लिखा है। भाई कौन हो भाई, हाथ खड़ा करो। ठीक है, तो इसका क्या किया है मैंने, एक एक्रोनिम जैसा मैंने लिख रखा है हर स्लाइड में ये है, ताकि मुझे भी याद आ जाए, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ। तो इसको याद रख के आप भी आगे जा, मतलब क्या साइन का होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो सो हो गया। फिर CH क्या, cos का क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। फिर TOA का क्या होता है? tan का ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, OA कैसा है भाई? O मतलब पहले साइन का हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो दोनों के नीचे ही है, और फिर A आता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, और फिर जो रहेगा OAO। ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि OA तो फिर ही आएगा, आप उसको OA बोलोगे तो वो भी आपको OA बोलेगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के क्लास के कुछ क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कौन आंसर दे पाते हैं आप में से। भाई चुगली करना ठीक बात नहीं है भाई, आपको भी कोई किसी नाम से कल बुलाएगा, अच्छा लगेगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है BF ट्रायंगल। इसमें मुझे चाहिए कि cos F का वैल्यू कितना है। फिर से आपके पास ये भी है, इसको भी देख के देख लीजिए, मतलब निकाल लीजिए आंसर। cos F का वैल्यू क्या है? उठिए जोर से बोलिए, क्या? 5/13। ओके, देखते हैं क्या 5/13 करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। कौन बताना, मतलब एक्सप्लेन करना चाहेगा यहाँ आके? हाथ खड़ा कीजिए, कौन आएंगे? आइए आइए सर, आइए। वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा हम सब आशुतोष भाई के लिए सर के लिए ताली मारे। तो आप लोगों ने देखा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर से वही ट्रायंगल है भाई, क्योंकि ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता। तो ट्रायंगल क्या है? अभी कौन सा ट्रायंगल है? अरे भाई ट्रायंगल का नाम बताओ। BF। और इसमें कौन सा वाला एंगल मांग रहा है? sin F मांग रहा है। तो sin F का क्या होगा फॉर्मूला? भाई फॉर्मूला तो पहले बताओ। ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कितना है? 12 है। हाइपोटेनस कितना है? तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। अभी tan G निकाल के दिखाओ, क्या आएगा tan G?
ना, हाथ 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 ऊपर करो। लड़कियां सब क्लास में, हाँ बोलिए। 15/8 कैसे निकाला आपने 15/8? ये भाई बताइए बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए 15/8 कैसे आया? ज्ञान का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट में एडजसेंट। वेरी गुड। जी का ऑपोजिट है चाइल्ड है जो कि 15 है इसका वैल्यू। वेरी गुड। का एडजसेंट 8 है तो 15/8। नाइस नाइस नाइस। अभी ट्रायंगल थोड़ा मैंने बदल दिया क्योंकि 3 प्रश्न एक साथ हो गए, अच्छा नहीं लगा मुझे। लोग मतलब स्पेशल भी सोचेंगे भाई कुछ नहीं किया, 5 क्वेश्चन एक ही पे दे दिया। अब देखिए इन द ट्रायंगल बिलो, यहाँ दिए सॉरी साइड में दिया गया है, मैं बिलो कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। Which one is equal to A/C? इसमें से कौन किसका वैल्यू A/C के वैल्यू से समान होगा? कमलेश जी बोलिए। बोथ एंड बी, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हाँ sin 20 डिग्री कैसे होगा बताइए मुझे। अपोजिट बाय हाइपोटेनस ऑपोजिट कितना है? ए एंड सी। हाँ वेरी गुड। अब cos 70 डिग्री कितना होगा? cos 70 के लिए एडजेसेंट। वेरी गुड। ये सी हो जाएगा। वेरी गुड। तो आप सबको समझ में आया ये? हाँ भी बोल दो भाई। कमलेश जी के लिए भी एक ताली मार दीजिए, वरना वो रूम में जाके मुझे बोलेंगे मैंने दे दी ताली नहीं मारी। तो आंसर इसका भी सी है। थैंक यू सो मच।